السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ آج کا ویڈیو قربانی کی مسائل اسی موضوع پر ہونے والی تقریباً اس ویڈیو میں 19 مسائل بیان کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ کمنٹ کریں، اور آگے کا مسائل اگلے ویڈیو میں بھی دیا جائے گا جو باقی رہ گیا ہے۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل فقہی۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر پر دونوں پر واجب۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ دونوں پر واجب ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی منت مانگی، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اگر غنی خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو، نہ منت مانگنے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے احیام میں جو قربانی واجب ہے وہ غنی پر ہے۔ مسئلہ ایک، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر نے قربانی کی تو نفل ہے۔ فقیر نے اگر منت نہ مانگی ہو تو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی نفل ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ دو، بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں کر لی، تو اس نیت سے قربانی نہ واجب ہوگی۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ تین، قربانی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے، اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اقامت یعنی مقیم ہونا مسافر پر واجب نہیں۔ تو نگری یعنی مالک نصاب ہونا، یہاں مالدار سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس پر شرط نہیں، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود سے اس کے مال سے قربانی کی جائے گی، یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرائے گا؟ ظاہر روایت سے یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتوے ہیں در مختار وغیرہ۔ مسئلہ چار، مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہو ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ مدینے والے حج کرے تو چونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر واجب ہوگی، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ پانچ، شرط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں شرط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرط کا بھی پائے جائے۔ اسی طرح اگر غلام تھا، آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ یا فقیر تھا، وقت کے اندر مالدار ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ 6،
कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्त है। जब वह वक्त आया और शर्त वजूब पाए गए तो कुर्बानी वाजिब हो गई और उसका रकन उन मखसूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नीयत से ज़िबह करना है। कुर्बानी की नीयत से दूसरे जानवर को मसलन मुर्ग वगैरह को ज़िबह करना जायज़ नहीं। रे मुख्तार मसअला 7, जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम हो, वह गनी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकान और खानादारी के सामान जिनकी हाजत हो और सवारी का जानवर और खादिम पहनने के कपड़े, इसके सिवा जो चीज़ें हैं वो हाजत असलिया से जायद है, तावे आलमगीरी वगैरह। मसअला 8, उस शख्स पर दीन है और उसके अमवाल के दीन की मिकदार मुजरा की जाए तो निसाब बाकी नहीं रहती, उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं और इसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वह माल उसे वसूल होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं। फतावे आलमगीरी। मसअला 9, एक शख्स के पास 200 दिरहम थे, साल पूरा हुआ और उनमें से 5 दिरहम ज़कात में दिए, 195 दिरहम बाकी रहे। अब कुर्बानी का दिन आ गया तो कुर्बानी करना वाजिब है और अगर अपने ज़रूरियात में 5 दिरहम खर्च करता तो कुर्बानी ना होती। फतावे आलमगीरी। मसअला 10, मालिक निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी ख़रीदी थी, वह गुम हो गई यानी भूल गई और उस शख्स का माल निसाब से कम हो गया। अब कुर्बानी का दिन आया तो उस पर यह ज़रूरी नहीं कि दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करे और अगर वह बकरी कुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और ये शख्स अब भी मालिक निसाब नहीं है तो इस पर इस बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं। फतावे आलमगीरी। मसअला 11, औरत का मेहर शौहर के ज़िम्मे बाकी है और शौहर मालदार है तो इस मेहर की वजह से औरत को मालिक निसाब नहीं माना जाएगा अगरचे मेहर मंजिल हो और अगर औरत के पास इसके सिवा बाकदर निसाब माल नहीं है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फतावे आलमगीरी। मसअला 12, किसी के पास 200 दिरहम की कीमत का मिसहब शरीफ कुरान मजीद है, अगर वह देख कर उसे अच्छी तरह से तिलावत कर सकता है तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे इसमें तिलावत करता हो या नहीं, और अगर उसे अच्छी तरह देख कर तिलावत ना कर सकता है तो वाजिब है। किताबों का भी यही हुक्म है, उसके काम की है तो कुर्बानी वाजिब नहीं वरना वाजिब है। फतावे आलमगीरी। मसअला 13, एक मकान जाड़े के लिए एक गर्मी के लिए ये हाजत में दाखिल है, इनके अलावा इसके पास तीसरा मकान हो जो हाजत से जायद है, ये 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह गर्मी जाड़े के बिछौने हाजत में दाखिल है और तीसरा बिछौना जो हाजत से जायद है इसका एतबार होगा। गाजी के लिए 2 घोड़े हाजत में है, तीसरा हाजत से जायद है, सलाह गाजी की हाजत में दाखिल है। हाँ, अगर हर किस्म के 2 हथियार हो तो दूसरे को हाजत से जायद करार दिया जाएगा। गांव के ज़मींदार के पास 1 घोड़ा हाजत में दाखिल है और 2 हो तो दूसरे को जायद माना जाएगा। घर में पहनने के लिए कपड़े और काम काज के वक्त पहनने के लिए कपड़े और जुम्मा व ईदैन और दूसरे मौक़ों पर पहन कर जाने के कपड़े, ये सब हाजत असलिया में दाखिल है और इन 3 के सिवा चौथा जोड़ा अगर 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। तावे आलमगीरी दुर्रे मुख्तार। मसअला 14, बालिग लड़कों या बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाज़त हासिल करे, बग़ैर उनसे कहे अगर कर दी तो यानी बग़ैर इजाज़त लिए कर दी तो उनकी तरफ से वाजिब अदा ना हुआ और नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं है मगर कर दिया तो बेहतर है। फतावे आलमगीरी। मसअला 15, कुर्बानी का हुक्म यह है कि उसके ज़िम्मे जो कुर्बानी वाजिब है कर लेने से बड़ी वो जिम्मा हो गया यानी बड़ी जिम्मेदारी का छुटकारा हो गया।
अच्छी नीयत से की है, रिया वगैरह की मुदाखिलत नहीं, तो अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि आखिरत में उसका सवाब मिलेगा। दुर्रे मुख्तार वगैरह। मसला 16, ये ज़रूरी नहीं कि 10वें ही को कुर्बानी कर डालें, इसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करे। लिहाजा अगर इब्तिदाई वक्त में इसका हल ना था, वजूब के शर्त में नहीं पाए जाते थे और आखिरी वक्त में अहल हो गया, यानी वजूब के शर्त पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई। और अगर इब्तिदाई वक्त में वाजिब थी और अगर अभी की नहीं और आखिरी वक्त में शर्त जाते रहे तो वाजिब ना हुई। फतावे आलमगीरी। मसला 18, एक शख्स फ़कीर था, अगर उसने कुर्बानी करी, इसके बाद भी वक्त कुर्बानी का बाकी था कि गनी हो गया, तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए कि पहले उसने जो कुर्बानी की वह वाजिब ना थी और अब वाजिब है। बाज उल्मा ने फरमाया कि वह पहली कुर्बानी काफ़ी है, और अगर बावजूद मालिके निसाब होने से उसने कुर्बानी ना की और वक्त ख़त्म होने के बाद फ़कीर हो गया तो उस पर बकरी की कीमत सदका करना वाजिब है, यानी वक्त गुजरने के बाद कुर्बानी सख्त ना होगी। और अगर मालिक निसाब बगैर कुर्बानी किए हुए उन दिनों में मर गया तो उसकी कुर्बानी सख्त हो गई। मसला 18, कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी उसने बकरी या उसकी कीमत सदका कर दी, ये ना काफ़ी है, इसमें नियाबत हो सकती है, यानी खुद करना ज़रूरी नहीं, दूसरे को इजाज़त दे दी, इसने कर दी, ये हो सकता है बेहतर है कि खुद करे। तावे आलमगीरी। मसला 19, जब कुर्बानी के शर्त मज़कूरा पाया जाए तो बकरी को ज़िबह करना या ऊँट या गाय का 7वां हिस्सा वाजिब है, 7वें हिस्से से कम नहीं हो सकता, बल्कि ऊँट या गाय के सरका में अगर किसी शरीक का 7वें हिस्सा से कम है तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई। बाज इसका 7वां हिस्सा या उससे ज़्यादा है, उसकी भी कुर्बानी नहीं हुई। गाय या ऊँट में 7वें हिस्सा से ज़्यादा की कुर्बानी हो सकती है, मसलन गाय को 6 या 5 या 4 हिस्सों की तरफ से कुर्बानी करे हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि सब सरका के हिस्से बराबर हो, बल्कि कमो बेश भी हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जिसका हिस्सा कम है तो 7वें हिस्से से कम ना हो। दुर्रे मुख्तार। सामिन इकराम, और भी मसाइल बाकी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे अगले वीडियो में जी दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें, जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।